Welcome, my dear students. Let us start the session. So, first question of this session: if log of 80 on the base 10 is equal to a, log of 45 on the base 10 is equal to b, then what will be the value of log of 36 on the base 10? How will we calculate this value? And we need to find out this value in terms of a and b. In terms of a and b find out करना है value क्या होगा. So, log of 36 is 6 whole square, which implies this is 2 square multiplied by 3 squared. Isn't it so? है कि नहीं? ठीक है. सो क्या कर सकते हैं, पहले शॉर्ट अप्रोच समझते हैं, फिर एक बार कन्वेंशनल अप्रोच भी समझते हैं कि कैसे हम लंबे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या फिर क्वेश्चन का लैंग्वेज डिफरेंट होता तो हमें किस तरह से अप्रोच करना पड़ता. बट यहाँ पे हमें 80 और 45 की वैल्यू गिवन है ऑन द सेम बेस. सारे केसेस में बेस सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. विच इंप्लाइज कि 10 टू द पावर a इज 80, 10 टू द पावर b इज 45, बट उससे काम नहीं चलेगा अपना. सो 80 का लॉग है हमारा a, 45 का लॉग है b और 36 का लॉग वैल्यू में फाइंड आउट करना है. और क्योंकि बेस 10 है तो log of 10 वी नो दैट विल बी इक्वल टू 1. ठीक है. तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि हमें ऑब्वियसली पता है कि log of 10 ऑन द बेस 10 दैट इज इक्वल टू 1. ओके. ठीक है. सो इफ वी नो दैट मच तो log of 8 क्या होगा, बिकॉज दिस विल बिकम log of 8 प्लस log of 10. So that is equal to a. Hence log of 8 will be a minus 1. और 8 क्या है, 2 क्यूब है. 8 is 2 क्यूब. So log of 2 on the base 10, 3 times log of 2 on the base 10 is equal to a minus 1. So from here we get the value that log of 2 on the base 10 will be equal to a minus 1 divided by 3. Is that clear? ठीक है. और log of 36 क्या है, log of 36 क्या है, log of 36 on the base 10, 36 is 2 square into 3 square on the base 10. So this is equal to 2 times log of 2 या फिर 2 times log of 6, and then we can convert it to log of 2 plus log of 3. और log of 2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली. अब हमें log of 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो 45 को देखते हैं. 45 is 5 into 9. So we can write log of 45 as log of 9 plus log of 5, and this is equal to b. Now 9 is 3 squared, so this can be written as 2 times log of 3 on the base 10. So that will be equal to b minus log of 5, b minus log of 5, and log of 5 क्या हो जाएगा, we can write log of 5 as log of 10 by 2. 10 by 2 because log of 2 की वैल्यू हमें पता है, that we already know. So we can write this as b minus log of 10 by 2. So this will be equal to b minus log of 10 minus log of 2. और log of 2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर देंगे यहाँ पे, and hence we can get the value of log of 3. So this will be equal to b minus 1 plus log of 2, and log of 2 is a minus 1 upon 3. b minus 1 plus a minus 1 upon 3. और ये वैल्यू आई हमारी 2 टाइम्स log of 3 की. तो बस वैल्यूज को पुट कर देते हैं. तो 2 टाइम्स log of 2, log of 2 है हमारा a minus 1 by 3. 2 times log of 2 will be 2 times a minus 1 by 3 plus 2 times log of 3 is equal to b minus 1 plus a minus 1 by 3. So a minus 1 by 3 को कॉमन ले लोगे, आ जाएगा 3 times a minus 1 by 3. So this will be equal to a minus 1 plus b minus 1, and hence the answer will be a plus b minus 2. a plus b minus 2. Is that clear? ठीक है. ये तो हो गया कन्वेंशनल तरीका अपना सॉल्व करने का. बट अगर हम छोटी सी चीज को ऑब्जर्व कर लें यहाँ पे कि 36 है हमारा 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 45 इज 5 इंटू 3 स्क्वायर. ठीक है. और 80 है हमारा 5 इंटू 16, यानी 5 इंटू 2 पावर 4. इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यूज 80 एंड 45, बेसिकली a प्लस b विल बी log of 80 plus log of 45 on the base 10. और 80 into 45 that is equal to 3600, which is 36 into 100.
सो log ऑफ 100 तो हमें पता है, बस log ऑफ 36 स्ट्रेट अवे हमें मिल जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू log ऑफ 3600 ऑन द बेस 10, 80 into 45. ठीक है. सो दिस विल बी इक्वल टू log ऑफ 36 on the base 10 plus log of 100 on the base 10, and this part, this is equal to 2. So बस आंसर आ जाएगा हमारा log of 36 will be equal to a plus b minus 2. स्ट्रेट अवे आंसर आ जाएगा. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है. सो ये हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का शानदार तरीका. बट ये पहला वाला तरीका भी समझ में आना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली हर क्वेश्चन में तो ये अप्लाई नहीं होगा, हमेशा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. ये तरीका हमेशा काम करेगा. सो ये भी समझ में आना चाहिए. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, log of 27 on the base 12 is equal to a. So what will be the value of log of 16 on the base 6? What will be the value of log of 16 on the base 6? फाइन. तो 16 है हमारा 2 to the power 4, बेस 6 है हमारा 2 into 3, यहाँ पे बेस 12 है विच इज 4 into 3, और 27 है 3 क्यूब, यानी कि 2 और 3 के ही मल्टीपल्स हैं सारे के सारे. सो समहाउ हमारे जो लॉग की वैल्यूज हमें मिलेंगी, सबसे पहले जो गिवन है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. तो a इज इक्वल टू लॉग ऑफ 27 विच इज 3 क्यूब ऑन द बेस 12. सो दिस विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स लॉग ऑफ 3 ऑन द बेस 12. अब बेस प्रॉब्लमेटिक है, सो यहाँ पे बेस चेंज करते हैं. कैसे करेंगे, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम 3 को बेस में लेके चले जाएं तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी हमारे लिए. देखते हैं. सो इफ a इज इक्वल टू 3 टाइम्स लॉग ऑफ 3 ऑन द बेस 12, तो a बाई 3 विल बी इक्वल टू log of 3 on the base 12, or we can say 3 by a will be equal to log of 12 on the base 3. isn't it so? भाई रेसिप्रोकल ले लिया, और 12 हमारा हो जाएगा 3 into 4, 3 into 4. so this will be equal to log of 3 plus log of 4 on the base 3. this value will be equal to 1. so this will be equal to 1 plus log of 4 on the base 3, which is equal to 3 by a. अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं log of 16 ऑन द बेस 6 को. सो log of 16 ऑन द बेस 6, 16 is to the power 4, so this will be equal to log of 2 on the base 6, 4 times log of 2 on the base 6. अगेन बेस हमारा 6 आ रहा है, तो समहाउ अगर हम 2 को बेस में लेके चले जाएं तो क्या चीजों पे फर्क पड़ेगा. सो वी कैन राइट दिस एज इक्वल टू 4 अपॉन log of 6 on the base 2, and log of 6 on the base 2, 6 हमारा है 2 into 3, so we can write this as 4 upon log of 2 plus log of 3. कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है. अब log of 2 on the base 2 will be equal to 1, और यहां से ऑब्जर्व करो इस वैल्यू को. दिस इज log of 4 on the base 3 which is 2 squared, 2 squared, so 3 by a minus 1 is equal to 2 times log of 2 on the base 3. so यहां से we can get the value of log of 2 on the base 3, बट हमको चाहिए log of 3 on the base 2, तो जस्ट रिवर्स कर देंगे अगेन एक बार. so this will be equal to 3 minus a by 2a, which is equal to log of 2 on the base 3. so the reciprocal will be log of 3 on the base 2. प्लेस कर देते हैं वैल्यू यहाँ पे 4 अपॉन 1 प्लस दिस इज 3 माइनस ए बाई 2a, सो दिस वैल्यू विल बी 2a अपॉन 3 माइनस ए. क्वेश्चन खत्म हो गया. बस यही करना था हमको. और हालांकि ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और हमेशा सोचने से पहले क्या है, स्टार्ट कहाँ से करोगे. तो स्टार्ट में हमने पहले ऑब्जर्व किया कि हमारी लॉग वैल्यूज है, जो बेस है बेस डिफरेंट है, सेम नहीं है. सेकेंडली सारी वैल्यूज हमारा 2 और 3 के ही मल्टीपल्स है. ठीक है. सो समहाउ log of 2 ऑन द बेस 2 हमें पता है, log of 3 ऑन द बेस 2 हमें पता है. ये दोनों तो वैल्यूज 1 होंगी क्योंकि बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम है हमारे. ठीक है. बट log of 2 ऑन द बेस 3 या log of 3 ऑन द बेस 2, इन दोनों में से किसी भी एक का वैल्यू पता चल जाए तो फिर हमारा ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे. और फिर उसके बाद में हमने उसी अकॉर्डिंग प्रोसीड किया इस पूरे अप्रोच को. ठीक है. तो आंसर हमारा आ जाएगा अल्टीमेटली विल बी 4 टाइम्स 3 माइनस ए अपॉन 3 माइनस ए प्लस 2a, सो दैट विल बी 3 प्लस ए. 4 टाइम्स 3 माइनस ए अपॉन 3 प्लस ए, दिस विल बी द आंसर. इज दैट क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द वैल्यू ऑफ log of 30 ऑन द बेस 3 टू द पावर माइनस 1 plus log of 900 on the base 4 to the power minus 1 plus log of 30 on the base 5 to the power minus 1. So what will be the value? वैल्यू क्या हो जाएगा? अगेन हमारे बेसिस 3, 4 एंड 5 डिफरेंट है सारे केसेस में, बट पावर माइनस 1 है, यानी कि अल्टीमेटली ये वैल्यूज हमारी क्या है, 1 अपॉन log 30 on the base 3 plus 1 upon log of 900 upon base 4 plus log of plus 1 upon log of 30 on the base 5. सो क्योंकि ये 1 अपॉन है तो अल्टीमेटली हम जब न्यूमरेटर में लाएंगे इन वैल्यूज को या रेसिप्रोकल करेंगे, सो
30, 900 और 30 रिस्पेक्टिवली हमारे बेस में चले जाएंगे। इजंट इट सो? क्या बात समझ में आती है? बट बेसिकली क्या ये देख पा रहे हो, दिस इज 30, दिस इज 900 विच इज 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर। तो इन सारे केसेस में हम बेस को इक्वल कर सकते हैं, जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे बेस को हम इक्वल कर सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू log ऑफ 3 ऑन द बेस 30, द फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड वैल्यू विल बी log ऑफ 4 ऑन द बेस 30 स्क्वायर्ड, एंड थर्ड वैल्यू विल बी log ऑफ 5 ऑन द बेस 30। नो बेस यहाँ पे है 30 स्क्वायर्ड और पावर है 4 विच इज 2 स्क्वायर्ड। सो पहला वैल्यू तो हो जाएगा, या पहला और थर्ड वाले को अगर मैच मिला दोगे, सो दिस विल बी इक्वल टू log ऑफ 15, 3 इंटू 5 15 ऑन द बेस 30, प्लस यहाँ पे 4 को 2 स्क्वायर लिख दोगे तो बाहर न्यूमरेटर में से आ जाएगा 2, और बेस की वजह से क्योंकि बेस का भी स्क्वायर है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 2/2 टाइम्स log ऑफ 2 ऑन द बेस 30, 2/2 1 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली 15 इंटू 2 दिस विल ऑल्सो बी 30, log ऑफ 30 टू द बेस 30। सो आंसर रिजल्ट हमारा आ जाएगा 1, पावर विल बी इक्वल टू 1, ऑप्शन बी विल बी द आंसर, एवरीथिंग विल बी सिंप्लीफाइड। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If p is the smallest value of x satisfying the equation 2 to the power x plus 15 upon 2 to the power x that is equal to 8, then what will be the value of 4 to the power p? Very interesting question, और सॉल्व करो अपने एंड पे पॉज करके। ठीक है, 2 to the power x plus 15 upon 2 to the power x को हमें पहले सॉल्व करना है, और सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, एंड देन p is the smallest value of x. If we assume 2 to the power x is equal to y, ठीक है, let us say 2 to the power x is equal to y. सो इक्वेशन हमारा बन जाएगा y प्लस 15 अपॉन वाई विच इज इक्वल टू 8, मल्टीप्लाई कर दोगे y से तो y स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 8y, हेंस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 15 बनाना है प्रोडक्ट हमें, 8 सम है तो 5 प्लस 3 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा, तो y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y प्लस 15 दिस इज इक्वल टू 0, तो y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 5 दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, and if product is 0, either of these two values will be 0, so either will be equal, y will be equal to 3 or y will be equal to 5, and since y is 2 to the power x, so basically this implies that either 2 to the power x is equal to 3 or 2 to the power x is equal to 5, दो केसेस बने हमारे। and p is smallest value of x, smallest value कब आएगी? जब हमारा 2 to the power x equal to 3 होगा। हालांकि दोनों ही वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं, बट हमें अल्टीमेटली स्मॉलेस्ट ही निकालना है। 2 to the power x is equal to 3 और 2 to the power x is equal to 5, लॉग ले लो, बोथ साइड्स में लॉग ले लो, सो x टाइम्स log of 2 is equal to log of 3, सिमिलरली x टाइम्स log of 2 is equal to log of 5, राइट हैंड साइड में। log का बेस क्या लेंगे? बेस वो लेंगे जिससे हमारा x के साथ में जो पार्ट आ रहा है log 2 रिमूव हो जाए, यानी कि बेस 2 ले लेंगे, बेस 2 लेते ही दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1, और जो बेस लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे वही राइट हैंड साइड में लेंगे। ओके, सो दिस विल बिकम x is equal to log of 3 on the base 2, which is the smaller value, so this will be equal to p. This is the second value that we are getting, जो कि हमारे क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट नहीं है, बट अदरवाइज हमें दो वैल्यूज मिल रही हैं। ठीक है, अदरवाइज हमें दो वैल्यूज मिल रही हैं और दोनों ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं, बट p is equal to log of 3 on the base 2। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 to the power p, 4 to the power p का वैल्यू क्या होगा, यानी 4 to the power log of 3 on the base 2 का वैल्यू क्या होगा। ओके, 4 to the power log of 3 on the base 2 का वैल्यू क्या होगा। अब जो बेस है हमारा वही सेम बेस यहाँ पे मिलना चाहिए, क्योंकि लॉग पावर में है, तो क्या करेंगे 4 को 2 स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, सो 2 टू द पावर 2 टाइम्स log of 3 ऑन द बेस 2। अब ये 2 चला जाएगा पावर में न्यूमरेटर की, सो 2 टू द पावर log ऑफ 3 स्क्वायर ऑन द बेस 2 विच विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर ओनली विच इज इक्वल टू 9 आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन बी। हाँ, अगर ये सेकंड वाले को भी हम सॉल्व करते हैं एडिशनली साथ में, तो इसका आंसर आता 25, इससे हमें आंसर मिलता 25 विच वुड हैव बीन द सेकंड वैल्यू ऑफ 4 टू द पावर। अगर p की बजाय q होता है एडिशनली तो 4 टू द पावर q का वैल्यू हो जाता। ठीक है, तो एक वैल्यू में मिलेगा 9, एक मिलेगा 25, बट क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द x पे निकालना है दैट इज इक्वल टू p, सो आंसर विल बी 9 ओनली, आंसर विल बी ऑप्शन बी ओनली। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आई बिलीव कि समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर कहीं पे भी कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, ऑलवेज हमेशा कमेंट कर दिया करो। ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 1/3 times log of m on the base 3 plus 3 times log of n on the base 3 that is equal to 1 plus log of 5 on the base 0.008, then which of these expressions will be true in that case। सबसे पहला काम, ये जो 1/3 आ रहा है इसको पावर में लेके चले जाओ m की, सिमिलरली ये जो 3 आ रहा है इसको n की पावर में लेके चले जाओ, बेस तो दोनों केसेस में सेम है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, सो वैल्यू बन जाएगा हमारा log of m to the power 1/3 on the base 3 plus log of
n to the power 3 on the base 3, this is equal to 1 प्लस, अब ये जो बेस आ रहा है हमारा दैट इज 0.008 और वैल्यू है 5, तो अगर हमें इस लॉग वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो क्या लिख सकते हैं 0.008 को? 0.008 इज इक्वल टू 8 अपॉन 1000 विच इज 1 अपॉन 125, isn't 1 upon 125 and 125 is 5 का cube, so 1 upon 5 cube which is equal to 5 to the power minus 3. So we can write the right hand side as 1 plus log of 5 on the base 5 to the power minus 3. अब ये minus 3 बाहर आ जाएगा, so this will be 1 minus 1 by 3 या 1 plus 1 upon minus 3 जो कि 1 minus 1 by 3 हो जाएगा. So 1 minus 1 by 3 times log of 5 on the base 5 which will be equal to 1 only. So result आ जाएगा हमारा 1 minus 1 by 3 which is equal to 2 by 3. 2 by 3. Now since base सेम है so ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, log a plus log b is equal to log a b. So result हमारा आ जाएगा log of m to the power 1 by 3 into n cube on the base 3 is equal to 2 by 3. This is equal to 2 by 3. So that implies 3 to the power 2 by 3 will be equal to this product. 3 to the power 2 by 3 is equal to m to the power 1 by 3 into n cube. होल क्यूब कर दो बोथ साइड्स में, so होल क्यूब करते हैं दिस विल बिकम लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 3 स्क्वायर which is 9 और राइट हैंड साइड हो जाएगा m to the power 1 into n to the power 9 and hence n to the power 9 will be equal to 9 divided by m. Option B, n to the power 9 will be equal to 9 by m. क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of x satisfying log of 2 to the power x plus x minus 41 on the base 10 and that is equal to x into 1 minus log of 5 on the base 10. अब एक अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हो सकता है कि हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके देख लें, बिकॉज हमें ऑप्शन में वैल्यूज गिवन है, बट अगर वैल्यूज गिवन नहीं होंगी तो कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, तब फिर कैसे ट्राई करेंगे. तो पहले वो तरीका देखते हैं. ठीक है, पहले वो मेथड समझते हैं. अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में तो देखो लॉग जो गिवन है वहाँ पे बेस हमें 10 गिवन है. अप्रोच समझना हमेशा. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें लॉग गिवन है उसमें बेस हमें 10 गिवन है, बट राइट हैंड साइड में एक तो x आ रहा है, ये प्रॉब्लम देगा हमको क्योंकि x आउटसाइड द एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं, और फिर इनसाइड द एक्सप्रेशन क्या है 1 माइनस लॉग ऑफ 5 ऑन द बेस 10. तो हमें राइट हैंड साइड में भी अगर हम लॉग ले आए बेस 10 में तो फिर हम चीजों को कंपेयर कर पाएंगे, बट वो कैसे ला पाएंगे? वो तब ला पाएंगे जबकि ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ये हमारा लॉग में कन्वर्ट हो जाए. अगर ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा लॉग में कन्वर्ट हो गया और बेस उसका 10 बना लिया हमने, ठीक है, और तब ये जो x आउटसाइड में आएगा ये हम पावर में लेके चले जाएंगे, इसको पावर में लेके चले जाएंगे. तो पहले हमें ये प्रोसेस, ये मोडस ऑपरेंडी समझना सीखना पड़ेगा, उसके बाद में तो सॉल्व करना सीखेंगे. क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो अब जैसे ही हमें ये बात समझ में आ गई, अब हम क्या करेंगे, जुगाड़ करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहां तो लॉग में बेस 10 है बट ये एक 1 एडिशनल दिया है, तो 1 को किस में कन्वर्ट कर देंगे? वी कैन राइट 1 एज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 ऑन द बेस 10. ठीक है, सो राइट हैंड साइड हो जाएगा x इंटू log of 10 on the base 10 minus log of 5 on the base 10. So this will be equal to x into log of 10 by 5 on the base 10. और 10 by 5 क्या है? That is log 2. So this will be equal to x times log of 2 on the base 10. और ये x चला जाएगा पावर में, so this will be equal to log of 2 to the power x on the base 10. अब क्योंकि log में बेस सेम है दोनों केसेस में, so we can compare these two values. So left hand side में वैल्यू आ रहा है 2 to the power x plus x minus 41. And this value is 2 to the power x, so these two should be equal, and if these are equal that implies that x minus 41 should be equal to 0 and hence x will be equal to 41. X will be equal to 41. Option D will be the answer. क्या अप्रोच क्लियर है? ओके, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा. अदरवाइज सेकंड मेथड तो यही है कि हम डायरेक्टली ऑप्शंस को यूज करें, यूज ऑप्शंस. तो ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये अप्रोच समझ में आना चाहिए क्योंकि ऑप्शंस अगर गिवन ही नहीं होंगे, थीटा क्वेश्चन होगा, तब कैसे ऑप्शन यूज करोगे? So this is the proper approach to solve this question. Okay, clear? Next question. The value of the expression 1 upon log of 100 factorial on the base I where I is equal to 2 to 100 और sigma यानी कि summation. Sigma implies summation. So we have to sum all these values. फर्स्ट एक्सप्रेशन आएगा जहां पे कि हमारा I will be equal to 2, सेकंड में 3 होगा, थर्ड में 4 होगा, एंड फिर 5 एंड फिर 6 टिल 100. तो इस एक्सप्रेशन को प्रॉपर्ली लिखते हैं. तो हमारा पहला वैल्यू आएगा 1 अपॉन लॉग ऑफ 100 फैक्टोरियल ऑन द बेस 2 प्लस 1 अपॉन लॉग ऑफ 100 फैक्टोरियल ऑन द बेस 3 प्लस 1 अपॉन लॉग ऑफ 100 फैक्टोरियल ऑन द बेस 4 एंड सो ऑन टिल लास्ट टर्म होगा 1 अपॉन लॉग ऑफ
100 फैक्टोरियल ऑन द बेस 100। अब क्योंकि ये वैल्यू हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो हमारा बेस और आर्ग्यूमेंट प्लेसेस इंटरचेंज कर लेंगे। सो वैल्यू हमारा हो जाएगा log ऑफ 100 फैक्टोरियल, log ऑफ 2 ऑन द बेस 100 फैक्टोरियल पहला वैल्यू, सेकेंड वैल्यू log ऑफ 3 ऑन द बेस 100 फैक्टोरियल, थर्ड वैल्यू log ऑफ 4 ऑन द बेस 100 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल लास्ट वैल्यू, और जो कि होगा log ऑफ 100 ऑन द बेस 100 फैक्टोरियल। अब ये सारे के सारे लॉग हमारे सम हो रहे हैं तो अल्टीमेटली log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c एंड सो ऑन, सबको क्या करोगे a b c d ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे अल्टीमेटली। ठीक है, सो दिस ऑल कैन बी रिटन एज log ऑफ, प्रॉपर्टी क्या यूज करें हम, log a प्लस log b इज इक्वल टू log ऑफ ab। ओके, सो दिस विल बी इक्वल log ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू एंड सो ऑन टिल 100, और बेस हमारा है 100 फैक्टोरियल। अब 2 से लेके 100 तक मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली दिस इज ऑल्सो 100 फैक्टोरियल, ये भी तो 100 फैक्टोरियल हो जाएगा। सो log ऑफ 100 फैक्टोरियल ऑन द बेस 100 फैक्टोरियल, सो क्लियरली दिस विल बी इक्वल टू 1 ओनली। पूरा क्वेश्चन सबमिट गया एक टर्म में, सो आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1, आंसर विल बी इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन हो गया। सो ऐसे क्वेश्चन को देखिए घबराना नहीं है, हमें बस पैटर्न देखना है, एक बार चीज़ों को लिख के समझना है कि हमें एक्जैक्टली क्या करना है। और जब भी लॉग कभी भी डिनोमिनेटर में आएगा तो हमेशा उसको न्यूमरेटर में लाने की कोशिश करना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो हमेशा यही होगा, हमें न्यूमरेटर में लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज सॉल्व कैसे करोगे, है कि नहीं? अदरवाइज कैसे करोगे? सारे केसेस में बेस डिफरेंट आ रहा था बट आर्ग्यूमेंट सेम था, यानी जिसका हम लॉग ले रहे हैं वो तो सेम था। तो जैसे ही तुम न्यूमरेटर में लाओगे लॉग को, अल्टीमेटली सारे केसेस में हमारा बेस सेम हो जाएगा, और बेस सेम होते ही चीज़ें आसान हो जाती हैं। लॉग में हमारा बेस सेम हो गया तो कहानी हमारे लिए आसान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ log ऑफ x अपॉन y माइनस z इज इक्वल टू log ऑफ y अपॉन z माइनस x इज इक्वल टू log ऑफ z अपॉन x माइनस y, तो x इंटू y इंटू z इसकी वैल्यू क्या होगी? अब x इंटू y इंटू z निकालना है, बट अभी हमें जो वैल्यूज दिए हैं क्या दिया है, log ऑफ x अपॉन y माइनस z दिया है, log ऑफ y अपॉन z माइनस x, log ऑफ z अपॉन x माइनस y। सो अगर हम एज्यूम कर लें, लेट अस से कि ऑल दीज वैल्यूज आर इक्वल टू k, ऑल दीज वैल्यूज आर इक्वल टू k, और अगर ये एज्यूम कर लिया तो log ऑफ x यहाँ से आ जाएगा हमारा y माइनस z इंटू k। सिमिलरली log ऑफ y आ जाएगा z माइनस एक्स इंटू के, और log ऑफ z आ जाएगा x माइनस वाई इंटू के। अब अगर log वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, log ऑफ x प्लस log ऑफ y प्लस log ऑफ z, तो अल्टीमेटली एक्स वाई जेड हमारा प्रोडक्ट में मिल जाएगा log में हमको। ठीक है, सो ऐड कर देते हैं इन सबको, ऐड ऑल दीज, सो ऑन एडिंग द रिजल्ट विल बी log x प्लस log y प्लस log z। ठीक है, और ये सारी की सारी वैल्यूज क्या है, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, z से z कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज बाहर तो सब में k ही है, x से x, तो सब कुछ कैंसिल आउट होकर 0 बन जाएगा। सो log ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो दैट इंप्लाइज कि हमारा एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा, अगर log ऑफ एक्स वाई जेड इज 0 तो x इंटू वाई इंटू जेड विल बी इक्वल टू 1, दिस विल बी इक्वल टू 1। क्वेश्चन खत्म। Isn't it so? Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट इज इफ log ऑफ x ऑन द बेस 3 माइनस 3 divided by log of x on the base 3 minus 5 is less than 0 and a and b are integers such that x is equal to a and x is equal to b, satisfy this inequation to find the maximum possible value of a minus b। a very very interesting question, अच्छा सवाल है। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, और बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। तो एक बार वीडियो को पॉज करके अगर इनइक्वालिटी को समझते हो थोड़ा बहुत तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, और उसके बाद में सॉल्यूशन देखो। टेक योर टाइम, थोड़ा सा समय लो, अगर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना समझ रहे हो तो। ठीक है, अगर बिल्कुल नहीं समझ रहे हो तो फिर ये क्वेश्चन अटकेगा, फिर तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सबसे बड़े समझना है, उसके बाद में फिर अप्रोच आएगा बाकी। तो log ऑफ x ऑन द बेस 3 माइनस 3 अपॉन log ऑफ x ऑन द बेस 3 माइनस 5 एंड दिस वैल्यू इज लेस देन 0। अब एक बार को मान लेते हैं कि log ऑफ x ऑन द बेस 3 दिस इज इक्वल टू y, तो ये वैल्यू हमारा बन जाएगा, इनइक्वालिटी बन जाएगा y माइनस 3 अपॉन y माइनस 5 दिस इज लेस देन 0, दिस वैल्यू इज लेस देन 0। लेस देन 0 यानी कि निगेटिव है। तो हमारे दो पॉइंट्स मिल रहे हैं हमको, एक तो क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है y इज इक्वल टू 3 और दूसरा मिल रहा है y इज इक्वल टू 5। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि y इज इक्वल टू 3 पे हमारा न्यूमरेटर 0 हो रहा है, y इज इक्वल टू 5 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। ठीक है, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, या इस चीज को लिखने का कई बार तरीका हम और भी तरह से समझते हैं। ठीक है, बट दो क्रिटिकल पॉइंट्स है हमारे 3 एंड 5। तो पहले नंबर लाइन पे 3 और 5 को ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ इफ y विल बी ग्रेटर देन 5, अगर y हमारा 5 से बड़ा होगा, इन दैट केस y माइनस 3
एज वेल एज y माइनस 5 बोथ विल बी पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव होंगे, एंड इफ बोथ आर पॉजिटिव देयर प्रोडक्ट और इफ यू आर डिवाइडिंग वन बाय द अदर दे विल ऑल्सो बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो फिर समेशन हमारा प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा और डिवाइड करोगे तब भी पॉजिटिव होगा, तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा अल्टीमेटली हमारा। सिमिलरली इफ दे बोथ आर लेस देन 3 देन दे बोथ विल बी नेगेटिव, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी हम चाहे उनको मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, दोनों केसेस में रिजल्ट हमारा पॉजिटिव ही आएगा। सो इन दीज केसेस व्हेन y is less than 3 and when y is greater than 5 the result will be positive, only between 3 and 5 the result will be negative। और क्वेश्चन हमारा उसी बात की बात कर रहा है, यानी कि when the result is negative less than 0, so y should be between 3 and 5, 3 should be less than y and y should be less than 5, but y हमने assume किसको किया है, log of x को on the base 3, so we will write this value कि 3 is less than log of x on the base 3 and that is less than 5। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले 3 is less than log of x on the base 3 को देखते हैं। ठीक है, सो 3 to the power 3 क्या होगा, 27, तो x should be greater than 27, isn't it so? क्योंकि log on the base 3 कब 3 आएगा, जबकि हमारा x 27 हो, 27 हो तो 27 will be less than log of 27 on the base 3 will be less than log of x on the base 3 because 27 का log 3 बेस पे आएगा 3। सिमिलरली किस वैल्यू का log 5 आएगा, तो 5 log आएगा हमारा 3 to the power 5 का on the base 3, भाई 3 to the power 3 का log आएगा 3 on the base 3, 3 to the power 5 का आएगा 5 और 3 to the power 5 की वैल्यू क्या होगी, that will be 243, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 243। अब क्योंकि बेस सेम है तो हम वैल्यूज को कंपेयर करा सकते हैं, तो बस स्ट्रेट अवे अब कंक्लूजन अपना वैल्यूज पे। एक सेकंड, ये बीच में इनइक्वालिटी तो लिखी ही नहीं है, यहां पे इनइक्वालिटी भी तो आएगी। सो दिस इज लेस देन लॉग ऑफ 243 ऑन द बेस 3। ओके, अब हम क्योंकि बेस सेम है तो वैल्यूज को कंपेयर करा सकते हैं। 27 विल बी लेस देन x एंड x विल बी लेस देन 243, so this is our inequality, but question हमसे ये नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन इज सेइंग दैट a and b both are integers and x is equal to a and x is equal to b satisfy this inequation, यानी कि a and b both are between 27 and 243, क्योंकि दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वेशन को, यानी कि 27 और 243 के बीच में ही लाई कर रहे हैं और दोनों इंटीजर भी हैं। सो वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ a माइनस b। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कब मिलेगी, जबकि एक वैल्यू हमारा एक एंड पे हो, दूसरा वैल्यू दूसरे एंड पे हो, यानी कि वन ऑफ देम शुड बी मिनिमम, वन ऑफ देम शुड बी मैक्सिमम। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, अब यहां पे क्योंकि इनइक्वालिटी है, लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 होता अगर, तो फिर हम अगर लेस देन इक्वल टू 0 होता तो y इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाई हो जाता। जस्ट इन केस अगर इक्वल टू 0 होता तो यहां पे हम सेटिस्फाई करा देते, इजंट इट सो, y इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाई कर देता इस कंडीशन को। क्या ये बात समझ पा रहे हो, बट क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, दैट इज वाई इनइक्वालिटी है यहाँ पे 3 पे भी। 5 पे तो अनडिफाइंड हो जाता, तो 5 वाले केस में तो इन एनी केस हम नहीं करा सकते थे। ठीक है, अब क्या ये बात समझ जाता है, तो मिनिमम वैल्यू हमारा क्या आएगा, 27 विल नॉट बी द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ द x विल बी इक्वल टू 28। इंटीजर है तो मिनिमम 28 होगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू विल नॉट बी 243, दैट विल बी 242। और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज ले लोगे ए और बी को, किसी भी एक को ए मान लो, किसी भी एक को बी मान लो, डिफरेंस विल बी 242 minus 28 and hence 214, 242 minus 28 and hence 214, so the answer will be 214 in this case। क्या ये बात समझ पा रहे हो, क्या ये बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो। ठीक है, सो वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और आई बिलीव कि समझ में आएगा, मजा आएगा इस क्वेश्चन में और सीखने को मिला होगा कि अप्रोच कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। क्लियर, ठीक है, सो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। आई बिलीव सेशन में जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए वो समझ में आएंगे, और अगर सेशन को अप्रिशिएट कर पाए हो तो सेशन को लाइक जरूर करना है, लाइक बटन जरूर प्रेस करना है। साथ में इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल देन सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, सी यू इन अनदर सेशन।